یروشلم حضرت مسیح کی پیدائش سے 30 سال بعد یہودیہ کی سرزمین سالوں سے شورش اور ہنگاموں کا شکار رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ سرزمین مقدس بیگانوں کے حملوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ روم کی سلطنت نے اس مقدس سرزمین کو اپنی کالونی میں تبدیل کیا ہے۔ بحیرہ روم کا پورا مشرقی علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ہم ان ستونوں کو گرا دیں گے، بازاروں میں ہنگامہ اور فساد برپا کر دیں گے، اور پھر اس بلوے کے دوران ان وحشیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ پیتالس کی آمد کے موقع پر رومیوں کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے براواس۔ اس طرح کا اقدام بے وقوفی ہے۔ یوسف، تم نے ابھی تک کسی رومی کو مارا ہے؟ نہیں۔ انہوں نے یحییٰ کو مارا تھا۔ اگر تم یحییٰ کے حقیقی شاگرد ہو تو تمہیں چاہیے ان سے انتقام ہو۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنے یہودیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا تم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے اب ہو؟ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں، یہ یہودیہ کی سرزمین ہے۔ اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا دور شروع ہو چکا ہے۔ سنا تم نے؟ وہ آ رہا ہے، یہ گارڈ کا کمانڈر ہے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں، ہم دونوں تمہارے ان خوبصورت خچروں کو دیکھ رہے تھے جناب کوتوال۔ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بالکل نہیں، ہم سوچ رہے تھے ہم تمہیں ان خچروں کے ساتھ ان کی گاڑی میں باندھ دیں۔ او یروشلم کے بدبختو، او یہودیہ کے بدبختو، کیا تم سلیمان اور داؤد پیغمبر کے پائے تخت ہو؟ دیکھو تمہارا کیا حشر ہوا ہے۔ قیصر اعظم کے نمائندے، عزت مآب محترم جناب جنرل پونٹیس پلیٹل صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، احترام واجب ہے۔ جنرل صاحب، آپ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ جتنے عرصے آپ روم میں قیام پذیر رہے اس دوران یہاں کے حالات بہت خراب رہے۔ اب یہودیہ پہلے والی کالونی نہیں رہی۔ مجھے تو اس کے در و دیوار سے ہی نفرت ہے۔ میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگتا لینتوس۔ اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں روم واپس چلا جاؤں۔ معاف کیجیے حضور، ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم مزید خبروں کے ذریعے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ اوہ کوئی بات نہیں، تم بات جاری رکھو۔ جناب، یہاں ایک شخص کے بارے میں کچھ نئی خبریں ہیں جو ناصری کے نام سے مشہور ہے۔ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے بہت سے لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ عبادت گاہوں کے سرپرست اسے اپنے لیے ایک بہت خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں اپنے مستقبل کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھی خبر ہے، مجھے اس طرح کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جناب علی، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر کچھ غور فرمائیں۔ جتنی باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اس سے وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ جس کسی نے بھی اسے یروشلم بھیجا ہے بہت ہی مناسب اقدام کیا ہے، اور وہ صحیح وقت پر یروشلم آیا ہے۔ ادریان، کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ ناصری جناب، عیسیٰ ناصری۔ جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں 12 ساتھی چن لیے جو حواریین مسیح کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان جانثاروں کے نام یہ ہیں: پطرس جو کہ ماہی گیر تھے، ان کے بھائی اندریوس،
याकूब और यूहन्ना जुबैदी के बेटे। यूसुफ लावी जो बराबास के नाम से मशहूर थे, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से कब्रस से फलस्तीन आए थे। मता जो रोमियो के लिए मालियात की देखभाल पर मामूर थे, लेकिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के नतीजे में उनके असहाब में शामिल हो गए। फिलिप जो कि चरवाहा थे, कैदाउस, याकूब, बथलमूस, यूहन्ना जो कि मशरिकी सरजमीन से ईसा के दीदार के लिए यरूशलेम आए थे, यहूदा शमौन अस्करियती का बेटा भी इन लोगों में शामिल था, लेकिन उसने हजरत मसीह की रफाकत से कोई फैज हासिल नहीं किया। अजीम है वो परवरदिगार जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। अब ये हमारा फर्ज है कि हम पूरे खुलूस के साथ उसकी बंदगी और इबादत करें। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया की जिंदगी को रंजो अंधो समझते हैं, क्योंकि हकीकी आराम और खुशी उस जिंदगी के बाद नसीब होगी। कितने खुशकिस्मत हैं वो फकीर लोग जो दुनियावी लज्जतों से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए कि वो अनकरीब परवरदिगार की न खत्म होने वाली नेमतों से नवाजे जाएंगे। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें खुदाए रहीम के मलाइका बहिश्त के ताम पेश करेंगे। तुम लोग इस दुनिया में मुसाफिरों की मानिंद हो। क्या इस दुनिया का कोई मुसाफिर ऐसा हो सकता है जो अपने इन आलिशान महलों, जरखेज जमीनों और दुनियावी दौलत के खजानों को लेकर चले? नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो अपने साथ उन्हीं चीजों को ले जा सकता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है तुम्हारी जिंदगी के लिए। यहूदिया की सरजमीन में हर किस्म की मुखालफत और बगावत को बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। रोमियों की ये रस्म थी कि एक रोमी के कत्ल के बदले में 2 मकामी शहरियों को फांसी दी जाती थी। एक दिन जनरल क्लाचिल के हुक्म के मुताबिक रोमी फौजी एक मकामी शहरी को कत्ल के इल्जाम में यरूशलेम से फांसी घाट की तरफ सजा देने के लिए ले जा रहे थे। यरूशलेम पर कब्जा शुरू ही से हमारे लिए एक मुसीबत बना है। क्या यह हमारी गलती नहीं थी? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये फैसला हमने नहीं किया था, बल्कि रोम में तय पाया था। बराबर, रोमी फौज यरूशलेम के पुराने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? चलो चलकर देखते हैं। सिपाहियों, सीधे चलते रहो। हमें शहर से होते हुए गोलगटा जाना है। ओ यरूशलेम के जवानों, याद करो किस तरह दाऊद पैगंबर ने जालूत को शिकस्त दी थी। तुम्हें चाहिए इस मुकद्दस सरजमीन के पत्थरों को उठाओ और दुश्मनों पर संगबारी करो। सब एक जमा हो जाओ और इन पर पत्थरों से हमला करो। दुश्मन को शिकस्त दो। आओ, जल्दी करो। जालूत के पैरोकारों को संसार कर दो। जल्दी करो। यरूशलेम के लोगों, करो मत, हमला करो। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें मजीद फौज तलब करनी चाहिए। इनके कमांडरों को निशाना बनाओ, मार दो सबको। ये सलीब बहुत भारी है। खामोश रहो तुम। मुझसे कहा तुमने? स्लॉट जिंदाबाद, स्लॉट मुर्दाबाद, सराफत जिंदाबाद। जल्दी से भाग जाओ तुम। जनरल साहब, हुक्म दीजिए।
मुझे बहुत ही बुरी खबरों की इत्तलात मिली हैं। कैसी खबरें जनरल साहब? मेरे इल्म में ये बात आई है कि मुलजिम को फांसी घाट की तरफ ले जाते हुए बलवे के दौरान फरार कर दिया गया है। उस बलवे का नक्शा मैंने खुद खींचा था। उसका मकसद लोगों में खौफ और हरास फैलाना था, लेकिन लेंथोस, तुमसे बड़ी कोताही हुई। तुम्हारी गफलत की वजह से कैदी फरार हो गया। जनाब अली, मेरी कोई गलती नहीं है। अब जाओ और जेल में से 2 कैदियों को चूना ले जाकर फांसी दे दो। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ए खुदा के बरगज़ीदा रसूल, मेरी बहन की मदद करो। ये पैदाइशी गूंगी और बहरी है, ये बात नहीं कर सकती। जब से ये दुनिया में आई है ये कुछ भी नहीं सुन सकती। खुदा के लिए ए यीशु मसीह, ईसा मेरी मदद करे। ए खुदाया मेरी मदद करे। देखो कैसे हो गया ये। देखो मैं सुन सकती है। ये सुन सकती है। मेरी बहन ठीक हो गई है। खुदा का शुक्र है, ये बोल सकती है। ईसा मसीह की दुआ से तुम ठीक हो गई हो। ये सुन सकती है। ये बोल सकती है। मेरी बहन ठीक हो गई है। हजरत ईसा इबादत के लिए माबद सुलेमान में दाखिल होते हैं। हर तरफ से लोगों का हुजूम उनके दीदार के लिए जमा हो जाता है। हर एक की तमन्ना होती है कि खुदा के इस बरगजीदा बंदे की जियारत करे। हजरत ईसा लोगों के सामने आते हैं और लोगों को नसीहत फरमाते हैं। बाबरकत है पाक परवरदिगार का नाम, जिसने अपने बेपनाह लुत्फ व करम के जरिए इस पूरी कायनात और मखलूक को पैदा किया। उसने अपने इरादे के जरिए हर शय को वजूद बख्शा। उसने हर चीज को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी बंदगी करे। बाबरकत है उस रहीम व करीम का नाम, जिसने अपने बरगजीदा बंदे मूसा कलीम के जरिए हमें तौरात जैसी पाको पाकीज़ा किताब अता की। ऐ मेरे अजीज भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। आज जो हम कर रहे हैं, क्या कल हमसे उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा? हमें वो काम करने चाहिए कि अजाब से बचे रहें। हजरत ईसा ने अपने खिताब के जरिए यहूदी मुबल्लिगीन को, जिन्होंने तहरीफ का इर्तिकाब किया था, सख्त अल्फाज में तंबीह की। आपने शरीयत मुकद्दस और कलाम इलाही में तब्दीली के मुर्तकिब अफराद की शिद्दत के साथ मुजम्मत और सरजनिश की। कानून इलाही की गलत तशरीह करने वालों और तालीमात इलाही के खिलाफ चलने वालों को अजाब से डराया। हजरत ईसा अपने खिताब के दौरान एक माजूर खातून की तरफ मुतवज्जा हुए और आपने उसकी हालत पर रहम फरमाया। खुदाए कादिर मुतलक के नाम से खड़े होने की कोशिश करो, ताकि ये लोग समझ लें कि मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। खुदाए रहीम यह चाहता है कि मैं उसके बाबरकत नाम से इस कौम के साथ गुफ्तगू करूं। ईसा नासरी, यूसुफ नज्जार के रिजाई बेटे ने एक पैदाइशी गूंगी और बहरी लड़की को ठीक कर दिया है।
कुछ ही दिन पहले उसने एक और खातून को बदरूहों से निजात दी है। आज भी एक माजूर औरत उसके इल्म के जरिए ठीक हो गई है। देखते रहना कि कुछ दिनों बाद वो ऐसे मौजे दिखाएगा जिससे सब लोग उसके गिरविदा हो जाएंगे और फिर सारी कौम उसे अपना निजात दहिंदा कहकर पुकारेगी। अपनी तरफ से पेशगोइयां मत करो। पेशगोइयां? आप क्यों खामोश है जनाब गमलीएल? आपको तो लोगों की एक बड़ी तादाद मानती है। सब लोग आपको एक मोतदिल मिजाज आदमी समझते हैं। अगर पूरी कौम नफरात और तफरीत का शिकार हो जाए तो आप एक मुनासिब रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम आप इस वक्त मसलहत का शिकार नजर आते हैं। मैंने हमेशा आपके फायदे को मद्देनजर रखा है और शुरू ही से मुबल्लिगीन की शूरा का हिस्सा रहा हूँ। मेरे पास उसकी मुखालफत की कोई दलील नहीं है। जनाब कायफा, आप खुद बताइए उस शख्स से दुश्मनी का हमें क्या फायदा होगा? अगर वो सच बोलता है तो आपको उसकी मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। हमें उससे कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में उससे लड़ाई करना खुदा की मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। अगर वो झूठ भी बोलता है तो इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ तमाम हकाइक खुलकर सामने आ जाएंगे। ऐ मेरे उस्ताद, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमान से ताम भेजकर हमें अपनी नेमतों से नवाज सकता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो जब भी किसी काम का इरादा करे तो वो हो जाता है। हमारी ख्वाहिश है कि परवरदिगार हमारे लिए आसमान से ताहम नाजिल फरमाए, ताकि इस नेमत खुदाबंदी के जरिए आप पर हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाए और ये नेमत हमारे यकीन के लिए दलील बन जाए। खुदावंद मताल फरमाता है कि उसने तुम्हारी दुआ सुन ली है और वो जल्द ही आसमानी ताम तुम्हारे लिए नाजिल फरमाएगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी इस मौजे पर यकीन ना रखेगा तो उसे खुदा ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। उसकी नियामतों का शुक्र अदा करें और अपने खालिक की अदा करदा आसमानी ग़िज़ा को खा लें। बड़ा मजेदार खाना है। इससे ज्यादा लजीज खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया। बहुत ही लजीज मछली है। इस तरह की मछली मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी शिकार की और ना कभी खाई। यहूदा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं खा रहे हो? अस्करियोती, क्यों गुमसुम बैठे हो? खा लो खाना, तुम्हें जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। खा लो, क्यों चुप बैठे हो? ऐ मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने बंदे की दुआ सुन ली। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरे ख्याल में ये सब जादू है, कोई मौजज़ा नहीं। जो भी है तुम खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। बस ये भी सुन लो कि अगर तुम में से कोई भी शख्स इस मौजज़े पर यकीन न रखेगा तो खुदा उसे ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा होगा।
ये महज एक अफवाह है कि ईसा बादशाह बनना चाहता है। ज़लूद, तुम बताओ, इस बारे में तुम क्या क्या जानते हो? हाँ? झूठे हवारी, क्या तुम नहीं बोलोगे? तुम जिस तरह के कारोबारी आदमी हो, उसमें हमेशा नुकसान का खतरा रहता है, समझे शमून अस्करियती के बेटे? एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ हवारीन के साथ शहर नाइन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ रोमियों को देखा कि वो एक बुत अपनी इबादतगाह की तरफ ले जा रहे थे। उसी वक्त दूसरी तरफ शहर नाइन के लोग एक बेवा औरत के इकलौते बेटी की मैयत कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे। वो कौन है? ईसा नासरी। वो देखो, ईसा नासरी इस तरफ आ रहे हैं। ईसा, ए मरियम के बेटे, क्या आपकी विलादत मौजज़ा नहीं थी? तो मौजज़ा दिखाए। खुदाए मताल ने आपको हर चीज पर कादिर बनाया। मैं ख्वाहिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। ए मरियम के बेटे, मेरी फरियाद सुन ले। ए मरियम मुकद्दस की अजीम फर्जंद, मेरी इल्तिजा सुन ले। मत रोएं आप लोग, ये मरा नहीं है, सो रहा है। खुदाए अजीम के नाम से, दोनों जहानों के परवरदिगार के नाम से, ऐ नौजवान उठ जा। देखो मुझसा हो गया, सबको बताओ। देखो मुझसा हो गया, देखो ये मुझसा हो गया, बताओ सबको, बताओ ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया, मुझसा जिंदा हो गया। ये कैसे हो गया? ये मुझसा है। जल्दी से खुशखबरी यहूदिया की सरजमीन तक पहुंचाओ। सबको बता दो कि बनी इसराइल के खुदा ने हमें अपनी तजल्ली दिखा दी। इन्हें खुदा कहा जाए या खुदा का बेटा कहा जाए। यरूशलेम के लोगों, एक खुशखबरी सुन लो। अपने खुदा के बेटे का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाओ। हमने देखा ईसा नासरी ने एक मुर्दा जवान को जिंदा कर दिया है। यकीनन वो खुदा का बेटा है। तुम जानते हो ना कि हमारा एक ही दुश्मन है? हाँ, रोमी। नहीं, गौर से सुनो बरावास। मेरे ख्याल में तुम्हें इशारे से ही समझ लेना चाहिए। क्या तुम ईसा की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। सुनो, अब ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है ज़लूद कि तुम उसका रास्ता रोक लो। पहले मरहले में तुम ईसा के साथ बिल वास्ता मुकाबला करोगे। तुम अफवाहों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम सही तरह इन अफवाहों पर काम करो तो ये अफवाहें खंजर से भी ज्यादा कारआमद होंगी। तुम लोग उसके हसब और नसब की दास्तान छेड़ो और उसकी विलादत के बारे में शुकूक पैदा करो। क्योंकि उसका कोई बाप नहीं। आज के बाद हम हर उस शख्स का खून बहाएंगे जो ईसा नासरी को खुदा या खुदा का बेटा कहेगा। तुम सब काफिर हो। हम अजीम यहूदी बादशाह के इंतजार में हैं, ना कि खुदा के बेटे के। अद्रियान, ये शोर शराबा कैसा है? जनाब, एक बिल्कुल नया हंगामा शुरू हुआ है। यहाँ के लोग जियारत के बदमाशों के साथ लड़ रहे हैं। शायद कोई मजहबी बगावत शुरू हो गई है। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा हंगामा है, लेकिन डर है कि ये हंगामा बहुत जल्द ही दूसरे इलाकों में फैल जाएगा। ये सारा फसाद उस जलीली पैगंबर की वजह से शुरू हुआ है।
और अब ये सब कुछ उसी के जरिए खत्म हो जाएगा। जो भी ईसा को खुदा या खुदा का बेटा कहता है उसको मार दिया जाए। यहूदिया की सरजमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के साथ हंगामे शुरू हो गए। इन हंगामों की आग भड़काने वाले रोमी फौजी थे, जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाकर यहूदियों को खूब इश्तियाल दिलाया। फसाद के बाद रोमी फौजी उनकी सरकूबी पर उतर आए। यहूदी कौंसिल के रहबरों ने शुरू में थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इस तरह पूरा यरूशलेम शदीद हंगामों की लपेट में आ गया। मुशरिक रोमी फौजी जो कि शुरू में इस फितने को हवा दे रहे थे और लोगों को इस बात पर उकसा रहे थे कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लें, वो आखिरकार फसाद करने वालों की सरकूबी पर मजबूर हो गए। यहूदी उलमा की अंजुमन ने शुरू में इस झगड़े में गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया और खामोशी इख्तियार की। वो चाहते थे कि इस फसाद के जरिए लोगों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ पैदा हो जाए और वो इस मौके से फायदा उठाकर उनको बदनाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस फितने की आग शहरों से निकलकर करियों और देहातों तक पहुंच गई और लोग एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गए। हर जगह लोगों का कत्लेआम होने लगा। 40 रोज तक हर तरफ आग और खून की होली खेली जाती रही। हंगामों की शिद्दत इतनी थी कि बाप बेटे और भाई भाई के कत्ल के दरपे हो गया। यहूदी अंजुमन के उलमा बिलाखिर मजबूर हो गए कि इस कत्लेआम को बंद करने के लिए अमली इक़दाम करें। यरूशलेम के तमाम यहूदी उलमा इस मुश्किल को हल करने के लिए सबसे बड़े यहूदी आलिम और मजहबी पेशवा यूसुफ कायफा के पास चले गए और उनसे दरख्वास्त की कि इस बदअमनी को खत्म करने के लिए उनकी मदद करें। कायफा रोमी अफवाज का जनरल प्लेटल बादशाह हरूद अमन की दावत देने के लिए अवाम के पास पहुंच गए। कायफा ने लोगों से कहा कि वो मजमे की शक्ल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं और हकीकत हाल को उनकी अपनी जबान से सुन लें। लोगों ने इस मशवरे को कबूल किया। जल्द ही ये खबर पहुंच गई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी सहराए उर्दन पहुंच गए हैं। यरूशलेम और दूसरे शहरों से लोगों का एक जम गफीर हजरत ईसा से मुलाकात के लिए रवाना हुआ। इन लोगों के साथ साथ यहूदियों का बड़ा पेशवा कायफा और रोमी अफवाज का जनरल प्लेटल भी रवाना हुआ। जनाब कायफा, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। सब्र करो और तमाशा देखो। ए हमारे खुदाए बुजुर्ग, ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हो तुम? अपने खुदा से डरो, उस खुदा से जो हय्य और कय्यूम है। बाप की वजह से पूरे यहूदिया में इनकलाब बर्पा हो गया है। जिस आदमी से भी सुन लो वो ये कहता है कि आप खुदा हैं। हम इस भड़की हुई आग को ठंडा करने के लिए रोमन हुक्मरानों के हमरा आपके पास आए हैं। हम दस्तबस्ता दरखास्त करते हैं कि जो फसाद भी आपकी वजह से बर्पा हुआ है उसे आप खुद मिटा डालें। इसीलिए हम खुद चलकर आपके पास यहां पर आए हैं। पूरी कौम बिखर चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप खुदा हैं, बाज लोग कहते हैं कि आप खुदा के बेटे हैं और बाज लोग कहते हैं कि आप खुदा के पैगंबर हैं।
اے یہودیوں کے پیشوا، تو کیوں فساد برپا کر رہا ہے؟ کیا تیرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا تو خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کی تعلیمات اور خدا کے شرعی قوانین بھول چکا ہے؟ خدا کی قسم، لوگ میرے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں میں ان سے بہت بیزار ہوں۔ تو انہی لوگوں کی باتوں کو دہرا کر ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم آج ہی روم کی حکومت کو ایک خط ارسال کرتے ہیں تاکہ وہ ایک حکم جاری کر سکے کہ آئندہ کوئی بھی شخص آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہے گا۔ آپ کے وعدے میری تسلی کا موجب نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ جہاں سے روشنی دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں وہاں تاریکی ہے۔ مجھے تسلی اس وقت نصیب ہوگی جب روئے زمین پر خدا کے آخری پیغمبر کا ظہور ہوگا۔ وہ میرے بارے میں ہر غلط اور بے بنیاد عقیدے کا خاتمہ کرے گا۔ ان کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا اور ہر جگہ ان کا آئین نافذ ہوگا۔ چنانچہ خدا نے حضرت ابراہیم سے اس بات کا وعدہ فرمایا تھا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان فرمودات کی وجہ سے یہودیہ میں فساد کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ رومی فوج کے نمائندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی خط روم کی سینٹ کو روانہ کیا۔ عالی جناب سیجانوس، یہ آئینی بل جو آپ کے سامنے ہے کسی بھی قسم کی قانونی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب سینیٹر، تم نے ایک اچھے نقطے کی نشاندہی کی ہے، اور ہماری آئینی تاریخ میں اس طرح کے دستوری بل کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بل ہمارے ملک کی قوانین سے متصادم نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ اس آئینی بل کو پیش کرنے میں پلاٹل کا مقصد یہ تھا کہ وہ روم کے محترم سینٹ کی منظوری سے اس قانونی بل کے ذریعے ہماری کالونی میں جاری فسادات کا خاتمہ کرے اور فلسطین کی سرزمین میں کسی ممکنہ بڑی بغاوت کا سدباب ہو جائے۔ بس ان واضح مقاصد کی موجودگی کے باوجود سینٹ کے پاس اس بل کو منظور نہ کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جو بھی اس بل کے حق میں ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کریں۔ قانون منظور ہے۔ یہودی کونسل کے ایک ایماندار پیشوا نیکودیموس نے، جو دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، خفیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اے نیکودیمس، مجھے بتائیں، آپ نے مجھے پہلی بار ہیکل سلیمانی میں دیکھا تھا، کیا اس وقت آپ کے دل میں یہ شک گزرا تھا کہ میں سابقہ پیغمبروں کی شریعت کو منسوخ کر دوں گا؟ جی ہاں میرے آقا۔ قسم ہے اس خدائے بزرگ برتر کی، اگر یہودی عالموں نے جھوٹی حدیثوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور ہمارے دادا حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب میں تحریف نہ کی ہوتی تو خدا مجھے نبی بنا کر نہ بھیجتا۔ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور داؤد علیہ السلام کی کتاب میں تحریف ہوئی، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعتیں جو خدا نے نازل فرمائی تھیں آج تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب لوگ ان بحثوں میں پڑ چکے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ فریسیوں نے کیا کہا تھا اور ان کے بارے میں علماء کا کیا نظریہ تھا۔ ان باتوں سے تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ خدا سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن انسان سے خطا نہیں ہو سکتی۔
بس افسوس ہے ان کافروں پر جنہوں نے خدا کے برگزیدہ پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں کا خون بہایا۔ زکریا علیہ السلام جیسے نبی کو ان جھوٹے علماء نے شہید کیا، اور نہ جانے کتنے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ کسی نبی کو انہوں نے نہیں بخشا کہ وہ اپنی طبعی موت کے ذریعے دنیا سے جائے۔ انہوں نے کسی مومن کو بھی اپنی طبعی موت نہیں مرنے دیا، اور اب ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں۔ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یروشلم کی خوبصورت ہیکل ان کی ملکیت میں ہے۔ خدا کی قسم وہ شیطان کی اولاد ہیں، اور اسی لیے وہ ابلیس لعین کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوا، مریم مجدلین جو آپ کے حقیقی پیروکاروں میں سے تھیں، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ استاد، کیا ہوا مریم؟ میرا بھائی لازر، میرا بھائی۔ کیا ہوا آپ کے بھائی کو؟ وہ مر رہا ہے۔ آپ روئے مت۔ کیسے نہ رو؟ میرا بھائی مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ استاد، میرا بھائی مر گیا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا میرا بھائی نہیں مرے گا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ مرا نہیں ہے۔ نہیں مرا ہے؟ ہم نے 4 دن سے اس کی میت کو تابوت میں رکھا ہوا ہے۔ حقیقی مردہ وہ ہے جو ایسی حالت میں مرے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو چکا ہو۔ لازر نہیں مرا ہے، نیند میں ہے۔ اے دو جہاں کے مالک، اے پروردگار، اس غم زدہ خاتون کی حالت پر رحم فرما، اپنی رحمت کے خزانے سے ہم پر اپنی عنایت فرما۔ لازر! چلو چلتے ہیں۔